दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थंबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। दरअसल ग्रेटा थंबर्ग जो है वो स्वीडिश एक्टिविस्ट है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया का उन्होंने इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं यह आरोप है कि जो उन्होंने ट्वीट्स किए उससे जो किसान आंदोलन है वहां पर तमाम लोग जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। इसके अलावा देश विदेश की तमाम सेलिब्रिटीज जो है इस वक्त ट्वीट्स कर रही हैं और आप देख भी रहे होंगे लगातार कभी अमेरिकन पॉप स्टार ट्वीट करती हैं तब तो कभी स्वीडिश जो एक्टिविस्ट है वो ट्वीट करती हैं। पुलिस का कहना है कि उनके तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं पर नजर है और इस समय जिस तरह से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी जो ट्वीट्स कर रहे हैं उन पर भी नजर है। In this toolkit, which was uploaded on one of the handles on a particular social media platform. Now, this is also in the public domain. Many of you are aware of this particular thing. It is also being mentioned by a lot of media houses. I've also seen some of the television channels which have mentioned about this. But what is important here is that the action plan which has been delineated in this particular toolkit, if you go by the unfolding of events, including the violence of the 26th January, it reveals a copycat execution of the action plan. Now that is something which is a matter of concern for Delhi Police. It definitely the intention of the creators of this toolkit is to create disharmony amongst various social, religious and cultural groups and also encourage disaffection and ill will against Government of India. It also aims at, and it says so, waging social, cultural and economic war against Government of India. Now this particular toolkit has come to our notice, and taking cognizance of this toolkit, Delhi Police has registered a case under section 124A, 153A, 153 and 120B IPC. That means spreading disaffection against Government of India and also creating disharmony amongst various social, cultural and religious groups. 120B for a planned conspiracy to execute such a plan. Now we have handed over, after registration of this case, we have handed over the investigation to the cyber cell, and which will be conducting further investigation into the case. So can you please tell us about the section once again? So I once again mention the section. It is 124A IPC, which is basically spreading disaffection against the Government of India. It's regarding sedition. And 153A is promoting ill will and hatred amongst various communities on social, cultural and religious grounds. Same is 153, and 120B is for criminal conspiracy to wage such a give shape to such a plan. So has Greta Thunberg been named in FIR? Has Greta Thunberg been named in FIR? So we have not named anybody in the FIR. It is only against the creators of the toolkit, which is a matter of investigation, and Delhi Police will be investigating that case. But that particular toolkit was treated from a particular account. Can you please name that particular account? See, you people are aware of that, so I don't want to name it here. Please name that, because that is very important. That's very important. We need somebody Who has put out that? I think most of you are aware of this. Let me first brief the press in Hindi. I think they also want it, and then I'll come back to the question part. Just give me 1 minute. आप सभी को मालूम है दोस्तों कि दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है, और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है।
और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है, धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। गृहमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि जो देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी सेंस में अब दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच इस मामले की जाएगी। स्पेशल सीपी प्रवीण रंजन ने इस बारे में मीडिया को भी ब्रीफ किया और उन्होंने बताया किस तरह से सेक्शन 120B और कहीं ना कहीं भारत सरकार के खिलाफ एक तरह से कहा जाए एक प्रोपेगेंडा चलाने के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि दरअसल इस तरह की तमाम खबरें आ रही थी और यह भी बात साफ हो रही है कि जो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, यानी कुछ उपद्रवी जो लाल किले में घुस गए थे, वहां उन्होंने झंडा फहरा दिया था, यह भी एक साजिश का नतीजा था। और बाकायदा कई हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये एक तरह से साजिश की बू आ रही है। इस तरह के जो ट्वीट्स हैं वो आपस में आदान प्रदान हुए हैं, कुछ और सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। अब साइबर सेल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिससे और स्थिति जो है साफ हो पाएगी। साइबर सेल ने अब मामला दर्ज कर लिया है और ये अपने आप में कहा जाए, एक तरफ जहां मामला दर्ज ये भी हुआ है कि लाल किले में जो हिंसा हुई उसको लेकर जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर जो है रखी जा रही है, यानी कि कौन सरकार के खिलाफ बोल रहा है, कौन पक्ष में बोल रहा है, किसने उस वक्त जब ये पूरा हिंसा हुई उस वक्त क्या क्या ट्वीट्स किए थे, किन किन लोगों ने क्या क्या ट्वीट्स किए थे, विदेशी सेलिब्रिटीज ने क्या ट्वीट किए थे, भारत के सेलिब्रिटीज ने क्या ट्वीट किए थे और उस ट्वीट से क्या वाकई हालात बिगड़े, तमाम ऐसी जानकारियां पुलिस उसको एकत्र कर रही है। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में कुछ और सेलिब्रिटीज के खिलाफ मामला पुलिस दर्ज करेगी। वहीं एक तरफ जहां कुछ जो मामला दर्ज हुआ था जिसमें हिंसा हुई थी उसको लेकर भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, रिवॉर्ड भी घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी दिल्ली पुलिस की नजर है। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोटी, क्राइम रिपोर्टर।